Hello student, myself Professor Anjali Patel from Raffle BBA College, Vapi. Subject Principles of Management in your first year BBA in your semester 1. Now we are proceeding with our unit number 3, that is organizing and staffing. In that, what you are going to learn, that is you are going to learn the basic concept of organization, its definition and its process. Then you will learn the principles of organization. Then you will move towards the meaning of the organization structure and the various types of organization structure, that is line organization structure, line and staff organization structure, matrix organization structure, कमिटी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. हर एक स्ट्रक्चर के आप फीचर्स पढ़ोगे, उसके एडवांटेजेस पढ़ोगे और उसके डिसएडवांटेजेस पढ़ोगे. देन वी विल मूव टुवर्ड्स द डिपार्टमेंटेशन. देन यू विल लर्न वेरियस टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट एंड उसके जो बेसिस है वो हम समझेंगे. देन वी विल मूव टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. वी विल अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड लिमिटेशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन. We will learn the basic concept of decentralization, its benefit and its limitation of decentralization. So this will be covered in unit number 3 in your first part of your unit number 3. Then we will move towards the another concept, that is what is meant by the formal and informal organization and the basic difference between the formal and informal organization. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को डिटेल में पढ़ेंगे और उसके बाद उसका बेसिक डिफरेंस जो है वो हम कवर करेंगे. देन वी विल लर्न द डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी, कि हाउ ऑथोरिटी इज बीइंग डेलीगेट, उसका मतलब क्या होता है, डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है, डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी मुझे करना है तो कौन सा प्रोसेस है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स व्हेन यू वांट टू डेलीगेट द ऑथोरिटी, व्हाट आर द ब्लॉक्स और डिफिकल्टीज व्हेनेवर यू डेलीगेट योर ऑथोरिटी, वो हम समझेंगे. And then we will learn the staffing, that is at what time the person should be hired, right person should be hired at the right place at the right time. तो staffing का मतलब समझेंगे और उसका फीचर समझेंगे. And then we will proceed with the difference between the recruitment and selection. तो उससे पहले हम recruitment का मतलब क्या है, selection का मतलब क्या है, what are the sources of recruitment वो हम covered करेंगे, and what is the procedure of selection वो हम covered करेंगे. That will be covered in your unit number 3. Today we are going to learn the basic introduction of the organization, its definition and its meaning, and then we will learn the principles of organization. Now we know very well the term organization is used in many ways. ठीक है, आप ऑर्गेनाइजेशन का जो टर्म है वो बहुत जगह अलग अलग वे में यूज होता है. बट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इट इज एन वन टाइप ऑफ एन एंटिटी विच रिफर टू एन ऑनगोइंग बिजनेस. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन क्या हो, एक एंटिटी है विच इज रिफरिंग टू हैज एन ऑनगोइंग बिजनेस यूनिट विच इज एंगेज इन यूटिलाइजेशन द रिसोर्सेज टू क्रिएट अ रिजल्ट. ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक तरीका, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक आपका एंटिटी होता है जिससे हम बोल सकते हैं कि ongoing business unit which is always engaged in utilization of result, utilization of resources, जिससे हम कुछ result जो है वो create कर सकते हैं. Organization is nothing but a group of people which is referred to as a different group created formally or informally by a common purpose. Organization क्या होता है, group of people. Group of people आप देखो कि वो create हुआ होगा, it can be a formal group, it can be an informal group. For what purpose? To achieve a common purpose, to achieve a common goal. Organization एक structure होता है जो हमें प्रिस्क्राइब कर रहा है कि इंडिविजुअल के साथ रिलेशनशिप क्या है, पोजीशन सबकी क्या है, व्हाट इंडिविजुअल इज हैविंग अ रिलेशन विथ हुम एंड व्हाट पोजीशन दे आर होल्डिंग. तो ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर है जिससे हम रिलेशनशिप अमंग द इंडिविजुअल वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और हर एक इंडिविजुअल की क्या पोजीशन होल्ड कर रहे हैं उसको भी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं. तो ऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ, इट इज वन टाइप ऑफ प्रोसेस जहाँ पे एम्प्लॉयज और द फैसिलिटी जो भी टास्क है उसको रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, जिससे हमारा पैसिफिक गोल जो होता है वो अचीव होता है. तो दैट इज योर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. आप देखोगे ऑर्गेनाइजेशन जो होता है इट इज अ सिस्टम ऑफ अ कोऑपरेटिव एक्टिविटी जहाँ पे दो से ज्यादा पर्सन के एक्टिविटी को
कोऑपरेट किया जाता है, तो एक सिस्टम हुआ, ऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ, एक सिस्टम हुआ जहाँ पे एक्टिविटी को कोऑपरेटिव वे में टू और मोर पर्सन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक सिस्टम है ऑफ कोऑपरेटिव एक्टिविटी ऑफ टू और मोर पर्सन, अलग अलग पर्सन अपना काम करें, उस एक्टिविटी को कोऑपरेट किया जाता है और वो पूरा एक सिस्टम होता है, दैट इज अ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन वेयर इट इज अ मैटर ऑफ अ रिलेशन ऑफ मैन टू मैन, इंडिविजुअल का रिलेशन इंडिविजुअल के साथ क्या है, जॉब टू जॉब आपका रिलेशन क्या है, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट रिलेशन क्या है, दैट इज योर ऑर्गेनाइजेशन। ना आप देखोगे यहाँ तक हमने जो समझा है वो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब समझा है। अभी आप जो समझ रहे हो दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या हुआ, इट इज अ प्रोसेस बाय विच योर एम्प्लॉयज, योर फैसिलिटी एंड टास्क वो एक दूसरे के साथ आप रिलेट करते हो विद अ व्यू टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन अपने समझा, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जहाँ पे एम्प्लॉयज, वर्कर्स, आप जो एक्टिविटी कर रहे हो, जो आप टास्क कर रहे हो, उसको एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हो। क्यों रिलेट कर रहे हो, मेन पर्पस क्या है, टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल। अभी एलन ने एक डेफिनेशन दिया है ऑर्गेनाइजेशन का, वो हम समझेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन इज नथिंग बट अ प्रोसेस where we identify the work to be performed, ठीक है। हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं एक प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ, एक प्रोसेस, जैसे कि बंदे को मुझे सिलेक्ट करना तो प्रोसेस होता है, तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एक प्रोसेस है जहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन सा काम हमें परफॉर्म करना है। हम वर्क जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसको ग्रुप कर रहे हैं इन अ सिमिलर, जो सिमिलर वर्क होगा उसको एक ग्रुप में हम ग्रुप इन करें। तो ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म। हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, वी आर डिफाइनिंग एंड वी आर डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, वी आर डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल पर्सन। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ, इट इज अ प्रोसेस जहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं वर्क जो हमें परफॉर्म करना है, हम वर्क को ग्रुप कर रहे हैं जो हमें परफॉर्म करना है। सिमिलर वर्क विल बी ग्रुप इनटू एक वन पर्टिकुलर ग्रुप में, ठीक है। अभी हम क्या करें, वी आर डेलीगेटिंग द ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आफ्टरवर्ड्स वी आर ट्राइंग टू हैव अ इंटर रिलेशन, we are establishing the interrelation with other people, ठीक है। फॉर मेन पर्पस क्या है कि हमें ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। तो सिंपल वे में हम समझे तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्रोसेस वेयर वी नीड टू आइडेंटिफाई द वर्क नीड टू बी परफॉर्म, ग्रुप इन द वर्क जो हमें परफॉर्म करना है इन अ सिमिलर ग्रुप। उसके बाद हम डिफाइन कर रहे हैं और डेलीगेट कर रहे हैं ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके बाद हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि इंटर रिलेशन क्या हो सकते हैं हर एक इंडिविजुअल के पर्सन। ये सारी चीज हम क्या कर रहे हैं, जस्ट टू अचीव द गोल एंड ऑब्जेक्टिव इन द इफेक्टिव वे, दैट इज योर ऑर्गेनाइजिंग। Now we will learn the basic principle of an organizing। पहला प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब देखोगे ऑर्गेनाइजेशन जो एग्जिट हो रहा है उसका मेन पर्पस यही है कि वो ऑब्जेक्टिव अचीव करे। तो यहाँ पे आपके जो भी एफर्ट्स है वहाँ वो किस पे कंट्रीब्यूट किया जाएगा, आपके अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव में। तो ये प्रिंसिपल क्या हुआ, इट्स अ प्रिंसिपल नोन एज यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, जो इम्प्लाई कर रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है इट शुड बी गोल ओरिएंटेड। हर एक डिपार्टमेंट का जो एफिशिएंसी जो है इट शुड बी मेजर इन टर्म्स ऑफ द कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द रियलाइजेशन ऑफ बेसिक ऑब्जेक्टिव। तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन जो एग्जिट हुआ है इट इज एनेबल द बिजनेस यूनिट टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। हर एक एफर्ट जो है इट शुड बी कंट्रीब्यूट टू द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। जैसे हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल इज नोन एज अ प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है, बिकॉज हर एक एफर्ट्स को किस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट में, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल क्या हुआ, प्रिंसिपल इज नोन एज अ प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। अभी ये प्रिंसिपल क्या इंप्लाई कर रहा है, इट इज implied that the structure of an organization ऐसा होना चाहिए that is goal oriented and efficiency of each department जो होते हैं, efficiency of each department it should be measured in terms of contribution in the realization of the basic objective। second आपका है principle of efficiency। principle of efficiency क्या है, हमें आपको समझा रही है, it must be observed that जो organization का structure formation हुआ है, ठीक है, organization efficient कब होगा, जब अपने उसके गोल अचीव किया है विद द लोवेस्ट कॉस्ट एंड विद द मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्स, तब हम बोल सकते हैं कि
ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट है। तो यहाँ पे हमें प्रोडक्शन कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, ठीक है। यहाँ पे हमें एम्प्लॉय को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देना है। ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम लोकेट कर रहे हैं उसको प्रॉपर्ली एलोकेट करना है। तो प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन विल बी एफिशिएंट व्हेन इट विल अचीव द गोल with a minimum cost and with a lowest cost and with a minimum waste of resources. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ स्पेन ऑफ कंट्रोल। स्पेन ऑफ कंट्रोल मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर जो है वो इफेक्टिवली सुपरवाइज होना चाहिए बाय द सिंगल इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल पर्सन में मतलब जो नंबर ऑफ बंदे जो सुपरवाइज करना है इट शुड बी सुपरवाइज बाय सिंगल इंडिविजुअल ओनली। मतलब नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट शुड बी सुपरवाइज बाय द सुपीरियर, शुड नॉट एक्सीड हिज कैपेबिलिटी। मतलब जैसे कि मुझे 10 स्टूडेंट्स को भी मैं सुपरवाइज कर सकती हूँ तो मुझे 10 बच्चे का ही सुपरविजन देना चाहिए, 10 से ज़्यादा नहीं देना चाहिए। तो जिससे हम बोल सकते हैं कि स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। नेक्स्ट इज स्केलर चेन प्रिंसिपल। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में देखोगे ऑथोरिटी हम लोकेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर लाइन ऑन ऑथोरिटी होनी चाहिए विच बी रन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो प्रिंसिपल इज नोन एज स्केलेटन प्रिंसिपल। जब भी ऑथोरिटी इज रनिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम दैट प्रिंसिपल इज कंसिडर्ड टू बी अ स्केलेटन प्रिंसिपल विच इम्प्लाई दैट देयर शुड बी अ चेन ऑफ कमांड फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड देयर शुड बी चेन फ्रॉम बॉटम टू टॉप। एक लाइन ऑफ ऑथोरिटी, जैसे कि आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन एक का लेवल है, एक यहाँ पे हम देखोगे टॉप लेवल, यहाँ पे देखोगे मिडिल लेवल, ये होगा बॉटम लेवल। तो लाइन ऑफ ऑथोरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड लाइन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम बॉटम टू टॉप वो होना चाहिए। दैट इज द स्केलेटन प्रिंसिपल। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन जहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन मतलब क्या हुआ, इफ अ पर्सन इज फाइंड हिमसेल्फ बर्डन, ठीक है, आपको लग रहा है कि बंदा जो है वो ओवर बर्डन हो जाएगा, तब उसको ड्यूटी जो असाइन की होगी, ठीक है, वो किसके हिसाब से असाइन करनी चाहिए, उसके मतलब इफ अ पर्सन इज फाइंड हिमसेल्फ ओवर बर्डन ही शुड असाइन सम ऑफ हिज ड्यूटी टू सम अदर पर्सन। प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन मतलब जब भी आपको लग रहा है कि आपका यहाँ पे जो काम करना है, आपको जो ड्यूटी असाइन की है वो ओवर बर्डन हो गई, तो सम ड्यूटी आप दूसरे बंदे को डेलीगेट कर सकते हो अलॉन्ग विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब ऑथोरिटी आप दे रहे हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी चाहिए। तो प्रिंसिपल इज नोन एज अ डेलीगेशन ऑफ एन ऑथोरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे अलॉन्ग विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी यू शुड डेलीगेट सम ऑथोरिटी टू योर सबऑर्डिनेट व्हेन यू फील दैट योर एक्टिविटी एंड व्हेन यू फील दैट योर टास्क इज बीइंग ओवरबर्डन। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो तो आपके यहाँ पे बैलेंस होना चाहिए बिटवीन योर ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी फुलफिल इन अ बेटर वे इफ यू आर हैव अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन अ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल वे में आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ एन एक्सप्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट मीन्स आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ही फुलफिल करना है। दो आपने दूसरे बंदे को कुछ काम दिया है बट यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क विच इज गिवन to you. That is principle of an absolute responsibility. If I have given an assignment, if I told you that each and every student need to submit your own assignment, तो आप दूसरे बंदे को रिस्पॉन्सिबल नहीं दे सकते हो। आपको जो रिस्पॉन्सिबल दी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ही करनी होगी। प्रिंसिपल ऑफ लेवल ऑफ ऑथोरिटी। प्रिंसिपल ऑफ लेवल ऑफ ऑथोरिटी ये स्टेट करता है कि मैनेजर अपने डिसीजन जो ले रहे हैं इट शुड बी अकोरेंट विद द ऑथोरिटी जो उसको दिया है। आपको वही डिसीजन लेना होगा जो आपको ऑथोरिटी दी गई है। सपोज मुझे यहाँ पे मुझे ये ऑथोरिटी नहीं है कि कल मंडे मुझे कॉलेज में छुट्टी देनी है कि नहीं देनी, वो मेरे पास ऑथोरिटी नहीं है, ठीक है। दिस ऑथोरिटी इज विद द प्रिंसिपल सर एंड अ ट्रस्टी, ठीक है। मेरे पास ये ऑथोरिटी है कि मैं क्लास में मुझे यहाँ पे लेक्चर सिलेबस कंप्लीट करना है, मुझे नोट्स अपलोड करने हैं, दैट इज माय ऑथोरिटी। उसमें मैं डिसीजन ले सकती हूँ, उसमें मेरा डिले भी हुआ दैट आई एम हैविंग ऑथोरिटी टू टेक अ डिसीजन। तो जो लेवल ऑफ ऑथोरिटी आपके पास दी है उतने तक ही आपको डिसीजन लेना है, उससे ज्यादा आपको डिसीजन नहीं लेना है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। दैट इज कि हैज पर दिस प्रिंसिपल हर एक एम्प्लॉय को जो ऑर्डर रिसीव होता है इट शुड बी रिसीव फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। एम्प्लॉय शुड बी आंसरेबल टू ओनली वन सुपीरियर।
सुपीरियर, ठीक है। एम्प्लॉय जो इंस्ट्रक्शन रिसीव करते हैं इट शुड बी नॉट बी रिसीव फ्रॉम 2 और मोर सुपीरियर, बिकॉज वो 2 और 2 से ज़्यादा सुपीरियर से अपने ऑर्डर रिसीव करेगा तो वो कंफ्यूज होगा कि किसका ऑर्डर फॉलो करूँ, ठीक है। सपोज मुझे यहाँ पे प्रिंसिपल सर ऑर्डर दे रहे, ठीक है, मुझे यहाँ पे सपोज दूसरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी ऑर्डर दे रहे, तो मुझे किसके ऑर्डर फॉलो करने में कंफ्यूज हो जाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर जो दे रहे हैं वो सिंपली एक ही बंदा होना चाहिए, सुपरवाइजर जो होगी उसको एक ही ऑर्डर को फॉलो करना है। तो हर एक एम्प्लॉय को एक ही ऑर्डर लेना चाहिए, रिसीव करना चाहिए फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली, एंड वो उसी एक ही बंदे को आंसरेबल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज योर प्रिंसिपल ऑफ डिपार्टमेंट। आप देखोगे कि यहाँ पे जो बिजनेस की टोटल एक्टिविटी है उसको डिवाइड किया है इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट, जिससे हम ऑब्जेक्टिव को एफिशिएंट वे में अचीव कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ डिपार्टमेंट मतलब क्या, वर्क को हमने डिवाइड किया है बाय डिवाइडिंग इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट। प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस, दैट मीन्स क्या होता है, बैलेंस मतलब क्या हुआ कि बैलेंस बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, बैलेंस बिटवीन योर डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सब में बैलेंस होना चाहिए, ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये भी याद रखना है कि यहाँ पे एक ही डिपार्टमेंट को फोकस करे वैसा नहीं होना चाहिए, हर एक डिपार्टमेंट में बैलेंस होना चाहिए, हर एक सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन में बैलेंस होना चाहिए, हर एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भी बैलेंस होना चाहिए। तो दैट शुड बी प्रॉपरली डन इन द ऑर्गेनाइजेशन। प्रिंसिपल फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या हुआ कि हैज पर दिस प्रिंसिपल जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज अडॉप्ट करना चाहते हो तो इजीली वो अडॉप्ट होना चाहिए। चेंज इंटरनल एक्सटर्नल सिचुएशन के हिसाब से, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में चेंज हुआ तो आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि वो चेंज हो सके एज पर द चेंज इन द एनवायरमेंट। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टोटली एक सिंगल पर्सन में डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। दो पर्सन इज लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन, योर ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट बी इन रक्सी, इट शुड नॉट बी इन अ पोजिशन टू बी इनऑपरेटिव। दो बंदे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हैं फिर भी बिजनेस शुड बी कंटिन्यूटी, ऐसा इमीडिएटली रिप्लेसमेंट आपके पास होना चाहिए जस्ट टू हैव अ कंटिन्यूटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। एंड लास्ट वन, प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप फैसिलिटेशन, बीइंग द सेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इट शुड बी इन सच अ वे दैट मैनेजर ऐसे अपॉर्चुनिटी मिले कि उसकी लीडरशिप क्वालिटी वो डेवलप कर सकते हैं और अपनी लीडर की कैपेसिटी अपने बिजनेस में वो यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और लीडरशिप स्किल वो आपकी इंडिविजुअल के थ्रू वो अपनी लीडरशिप स्किल जो है वो डेवलप कर सकते हो। दैट वाज द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Let's go through, then we will cover in more detail in online lecture. Thank you students for listening.